Chairman ICAI Ahmedabad Branch WIRC, Shri Rushabh Patel, Jito Gujarat Chapter, Shri Gaurang Bhugat, Secretary GCCI, CA Dr. Jenny Kapil, Chairman Direct Tax Task Force GCCI, CA Dr. Mazroor Jogi, Dean GLS University. I request everyone to please take your seats. Namaskar and good evening. I welcome you on behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, the Institute of Chartered Accountants of India, Ahmedabad Branch WIRC, Jito Ahmedabad Chapter, and GLS University for the seminar on Kendriya Budget 2025. To commence this seminar on a positive note, I request our esteemed dignitaries to join us for the lighting of the lamp. Sir, a group photo. बस सामने यस सर Thank you. थैंक यू सर To formally welcome our esteemed guest with his welcome address. Our esteemed guest, Honorable Union Minister of State, Independent Charge Science and Technology Ministry, respected Dr. Jitendra Singh Ji, Chairman ICAI, Sunil Bhai Sanghvi, Chairman Jito Rushabh Bhai Patel, Dean GLS University, CA Dr. Mazroor Jogi, Gaurang Bhai, और GCCI Direct Tax Force Committee Chairman, Jaini Bhai Vakil. Ladies and gentlemen, very good afternoon to all of you. I welcome all of you on behalf of GCCI and on my own behalf. It is a matter of immense pleasure for us that Honorable Union Minister Sri has accepted our invitation and graced this occasion. We are deeply grateful to Honorable Minister Sir. This was the 8th consecutive budget presented by Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman Ji, and what is truly impressive is that fact that throughout all the 8 budgets, NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has not deviated from the vision of Viksit Bharat. What is equally impressive is that fact that prior to parliamentary elections, an interim budget was presented and government had avoided all populist measures in this budget, reflecting their confidence that they would have an opportunity to present the next full budget. Each subsequent budget presented during the NDA regime reflects that this government missed business. The Union Budget 25-26 clearly reflects the government's commitment to encourage export, reflected in introduction of the export promotion mission with clear sectoral and ministerial target to enhance access to export credit and provide support for MSME is overwhelming non-tariff barriers. The launch of a unified digital platform, Bharat TradeNet, for trade documentation and financing is truly an innovative step forward. It will help streamline process and facilitate seamless integration into global supply chains.
The MSME is the credit guarantee over, the increase in the credit guarantee over for micro and small enterprises and startups, credit support to exporters MSME, and the idea of customized credit cards for Udyam registered micro enterprises, various schemes for women, the establishment of National Manufacturing Mission, and also above all, subsequent increase in income tax exemption to the tune of 12 lakh rupees, and for the salary 12.75 lakh rupees are the steps touching every section of the population and will surely help increase spirit to provide huge boost in the Indian economy. We have a Gate 2025 exhibition coming up on 10th, 11th and 12th. We just wanted to highlight that. Please keep in mind these dates, and it covers a variety of sectors like renewable energy, digital infrastructure, organic food and other alternatives, MSME, startups and women entrepreneurs. Please make a note of these dates so that you can have a glimpse of the exhibition. Sir, we are privileged to have the presence of Honorable Minister, sir, and eagerly look forward to avail his insight about the budget. I once again welcome you all to this seminar and thank to our colleague organizations for their support. Thank you very much. Thank you very much, Rajesh. I now request Shri Dusha Patel, Chairman Jito Ahmedabad Chapter, to share his thoughts. Distinguished guests on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. I have some experience to share with you regarding the mindset of the people for the country. We as a developer went for the study at Germany, Hamburg, to study the new development of a Hafen city there. And we found with the euro coming down and economy is not so good, even then that development was having premium installation at that country. So 2 days we visited and we were surprised that granite cobalt was paying, stainless steel lights were installed by architects design. So one day we wondered and I curiously asked one of the citizens over there that this economy versus this spending is not matching. And those days 52% was the gross taxation in the country. So I asked, the country is not growing and still the installation is so highly priced when you are installing. So what is your view of that? And she replied me, that lady of mid-age, she replied me, this is for generations to come and not for us. So that kind of a mindset from where we today as a country want to grow for the developing country by 47, we all are personally thinking that nation first. And with that, this year, we are happy that direct taxation is 19.6 lakh crore. The GST collection is increased since last 5 years. It was the first time we crossed 20 lakh plus for the year. So indirect taxation is happened because all the people, all the citizens of the country has started paying taxation. And that crossed because we, as a chamber, we always thought that direct taxation payers are always with the chamber, and here the gathering are such that we all pay and the country is being run by us. Now that myth has gone, the citizens of India is paying more and direct taxes are being used for core strength of the country where the infrastructure is growing by the GST collection. So with the new generation, thinking process of old versus new, 2025 we are bringing up more things, more changes to be adopted in our economy. And part of that income tax bill also being proposed for next year. So we're gonna see 2026 the new maybe act passed by the appropriate authorities. With that, we commit Jito, behalf of Jito business community, that we are always there, and for the tax and for the country, we will always determine to deliver. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, sir. I will now invite C. Sunil Sanghvi, Chairman ICI Ahmedabad Branch WIRC, for his welcome address.
respected Honorable Union Minister of the State, Dr. Jitendra Singh Ji, of the Ministry of the Science and Technology, dignitary on the dais, ICS Sunil Sanghvi, Chairman of the Ahmedabad branch of the ICI. Welcome all of you to this event, jointly organized with the GCCI, G2 Ahmedabad chapter and the GLS University. This budget 2025, sir is going to deliver on this, but the remarkable, we know for the medium working class people, the limit has been increased to the 12 lakhs, but doesn't mean that the return should not be filed up to your income, at least up to 12 lakhs. Even if your income is more than 4 lakhs, the basic limit, you have to file the return. Only the rebate, it is there up to 12 lakhs, and that it will be so in the return of income. This budget is a bold budget in this way, and after so many years, and the welcome provisions for the startups also, for the farmers and the agriculture also. For these 12 lakhs which I was talking for, the government has foregone the revenue of 1 lakh crores for this. Rupees 20,000 crores have been specifically allocated for the R&D also, and many more. So to this end, the income tax bill 2025 also they have been introduced. We have kept lecture tomorrow also at our premise to be delivered by the senior advocate Saurabh Soparkar. I welcome you, all of you again. Thank you. Thank you very much, sir. I will now request Shri Rajesh Gandhi, Senior Vice President, GCCI, Shri Gaurang Bhagat, Honorary Secretary, GCCI, and CA Dr. Jenny Vakil, Chairman, Direct Tax Task Force, GCCI, to present a token of gratitude and respect to the Honorable Union Minister of State. Sir, we are honored to have you today. Thank you, sir. I now request Chairman ICAI Ahmedabad branch CA Sunil Sanghvi and Central Council member Shri Purushottam Khandelwal to please come on the dais and welcome our chief guest Dr. Jitendra Singh. Thank you very much, sir. I now request Chairman G2 Ahmedabad chapter Shri Rushabh Patel, Secretary G2 Shri Manish Bhai Shah to please come on the dais and welcome Honorable Union Minister of State Dr. Jitendra Singh. Thank you very much, sir. I now request GLS University Dean CA Dr. Mazroor Jofi and Dr. Hima Trivedi to please come on the dais and welcome our chief guest Dr. Jitendra Singh, Honorable Union Minister of the State. Thank you very much, Honorable. I now request CA Dr. Jenny Vakil, Chairman Direct Tax Task Force, GCCI, to please give a formal introduction of Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh. Today's speaker and our most learned and distinguished guest, Union Minister of State Independent Charge of Science and Technology Ministry, Dr. Jitendra Singh Ji, Senior Vice President and Chairman of Vadilal Industries, Mr. Rajesh Gandhi, Chairman of GITO,
and renowned real estate developer Shri Rushabhbhai Patel, Chairman of CA Institute Ahmedabad CA Sunil Sanghvi, Dean of Commerce Faculty in GLS CA Dr. Marzoon Joki, and Central Council member CA Purushottam Khandelwal, Secretary of GITO Manish Shah, Economic Cell Convener and Co-Spokesperson of BJP Gujarat Prerak Bhai Shah, and galaxy of invited intelligence of the city. Good afternoon to all of you. In this budget, it's always a Herculean task to balance all interests as well as to safeguard all sectors. It's nothing less than acrobat's job. But we must acknowledge our Honorable Prime Minister Shri Modi ji and Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji to look after well-being of all sectors without deviating from cherished mission of Viksit Bharat. We all can say that this budget is miracle, magical, force multiplier, and I can say that na bhuto na bhavishyati budget. આ બજેટને જોતા એક કવિ ખલીલની પંક્તિ યાદ આવે છે, તમે મન મૂકીને વરસો, અમને ઝાપટું નહીં ફાવે, અમે તો હેલીના માણસ, અમને માવઠું નહીં ફાવે. Today we have with us most learned Dr. Jitendra Singh ji to give thorough insight of budget. Let me introduce our learned speaker. Dr. Singh is a MBBS, MD Medicine and endocrinologist. He is elected continuously in 2014, 19 and currently 24 Lok Sabha from Udhampur constituency. Presently, he is Union Minister of State Independent Charge, Ministry of Science and Technology, Union Minister of State Independent Charge, Ministry of Earth Science, Minister of State in PMO, MOS in Ministry of Personnel and Public Grievances, MOS in Atomic Energy, and MOS in Department of Space. As a chief spokesperson of Jammu and Kashmir, he brought Jammu and Kashmir to the national map through his thorough performance. He played historical role in 2008 in Amarnath land row agitation. He is author of 5 books and contributed over 5,000 articles, including widely read column Tales of Travesty. He has been awarded gold medal for oratory in JIP MER Pondicherry. With this brief introduction, please welcome the man with high integrity, caliber, clean image, and selfless society, Mr. Jitendra Singh. Thank you, sir. Thank you very much, Eric sir. Now we are honored to hear from Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Union Minister of State for Science and Technology. Please welcome Honorable Minister sir with a huge round of applause. On the dais, Shri Rajesh Gandhi ji, Gaurav Bhagat ji, Rishabh Patel ji, CA Sunil Sanghvi ji, CA Dr. Jainik Vakil. At the outset, thank you very much for your kind introduction and generous remarks. अभी ये कहा गया कि बजट के लिए कोई प्रस्तुति यहाँ रखनी और ये सूचना दिल्ली से आई और आपने आमंत्रित किया, हमारा काम सरल कर दिया, इसके लिए धन्यवाद. But to share any information or to inform the informed audience is simultaneously both an easy and a difficult task. Difficult इसलिए कि आपको सब पता तो क्या बता रहा, बल्कि आपसे समझना का काम हमें करना है, because these are all chartered accountants, experts in the field of medicine, both academically as well as having worked practically over several years. And difficult इसलिए और easy इसलिए कि अगर नाम ही बताएं तो आपने वाह वाह कर देनी है.
क्योंकि बिना समझाए ही आपको समझ है सारा। तो ये नहीं कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि आप पहले ही समझे हुए। बहरहाल अब क्योंकि असाइनमेंट दिया गया है तो इसको निभाने के लिए मुझे गांधी साहब और संघवी साहब बात कह रहे थे कि साहब ये स्लाइड वाइड का क्या करना, आप ऐसे ही कुछ बता दीजिए अपने अनुभव से, और जो आपका आकलन है तो वो ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। तो मैंने इनसे कहा कि चूँकि स्लाइड का ऑफिशियली एक कार्यक्रम बना है तो थोड़ा सा दिखा दीजिए, ताकि फिल्म की कहानी वही रहेगी, गीत कितने डालने कहाँ निकालने वो आप फैसला करें। सो व्हाट वी विल डू इज, because the organizers and their collaborators have provided a set of slides, so they should not go back disappointed. We just rush through that. I think there's just about 19 slides. तो उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे, and it would be more of interactive so that it's a mutually learning experience. अब सबसे पहले तो before we start that, I think picking up from what was being said by others, this budget actually simultaneously presents many things. It is a reflection of Prime Minister Modi's futuristic vision for Viksit Bharat और India 2047. तो इसमें फ्यूचरिस्टिक विजन की झलक भी है। जो ये सारी बातें अभी स्टार्टअप्स की ये कर रहे थे दूसरी, तो ये आ जाएंगी स्लाइड में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। या जो स्कॉलरशिप IIT के बच्चों को देने का है, या न्यूक्लियर मिशन है, एट द सेम टाइम रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी भी है, बड़ा साहसी है, बोल्ड है, बिकॉज you have announced the opening of a nuclear sector to private sector. कोई बड़ी बात नहीं है। कल आप जी मंच में बैठे हुए कोई दो चार बड़े न्यूक्लियर इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर उभर करके देश और दुनिया के नक्शे पर आए, because this was a sector which was working behind a wheel of secrecy for so many years. मुझे याद है एक बार हमारे कोई साइंटिस्ट देश सेक्रेटरी के गेट के उनके परिवार आया, अंदर से होके आया, तो उन्होंने शॉप में फोटो खिंचवा दिया और उनकी इंक्वायरी हो गई। यानी इतना पर्दे में रखा गया था। हालांकि देयर इज नथिंग नाउ सीक्रेट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज बीइंग वॉइड बाय गूगल एंड बाय अदर थिंग्स। तो उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना एक बहुत बड़ा निर्णय है, और इसका दूर था, बिकॉज इफ यू हैव टू एक्चुअली इट्स वेरी फैंसीफुल टॉकिंग अबाउट विकसित भारत, इट साउंड्स वेरी रोमांटिक कि हम वहाँ ऊपर बैठे होंगे, लेकिन इफ यू as analytic minds, if you think how are we going to reach there, and being leaders of the business community, you can understand better than me. If you go home and tell your spouse or family कि कल मैं करोड़पति बन जाऊँगा, आज मैं मेरे जेब में 100 रुपये है, तो वो पूछेंगे कि क्या करोगे, कोई टाका लगाओगे या कोई अमिताभ बच्चन की तरह कोई खेल खेलोगे, क्या करोगे? So have we asked ourselves, if we have reached the 5th economy, we are talking of reaching 4th and 3rd and number of, how are we going to reach there? So it's going to be value addition, and value addition from where? Value addition from those sectors which have been either not explored or underexplored, या बिल्कुल ही इनको बंद रखा गया। उसमें ये सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर, स्पेस सेक्टर, हमारा ओशन 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, कोस्टल एरिया, बिगिनिंग फ्रॉम उड़ीसा, बंगाल, गोइंग अप टू महाराष्ट्र, गुजरात, and huge amount of wealth, उसको कभी न किसी ने तराशा था तराशा। Himalayan resources, we have so many states lying in the lap of Himalaya, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अभी वहाँ रोवा मिशन शुरू किया गया। तो हम इस पर बात करते हैं थोड़ी सी, but let's finish off the formal going through the slides, so that then we are उस बात से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर खुल के बात आगे करते हैं। तो we'll have a glass also, तो वो कैसे करेंगे, कौन चलाएगा? तो ये तो इसका टाइटल है विकसित भारत के लिए सशक्त भारत का निर्माण। चलिए आगे, आप करते जाना, मैं बताते जाऊँगा, ठीक है ना? अब मैं सारा पढ़ूँ तो आप बोर नहीं हो जाना, लेकिन मेरे 25-26 के मुख्य उद्देश्य, एक तो कृषि क्षेत्र, at least I think this slide is significant in the sense that it points out to the priorities of the budget. कृषि सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत करना, MSME लोगों के निवेश, so that we increase the investments, अर्थव्यवस्था में निवेश, नवाचार को बढ़ावा देना, जो स्टार्टअप और इनोवेशन की बात अभी तक हो रही थी,
निर्यात को बढ़ावा देना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा। सुधार को सशक्तिकरण की रीढ़ बनाना, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, रोजगार एवं निवेश में वृद्धि और बाकी अन्य सुधार। अच्छा, आई थिंक यू आर मोर प्रिविलेज्ड। आपको मुझे थोड़ी सरकने की इजाजत दीजिए। अच्छा, ब्रीफली मैं ये मोदी जी का कथन है कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कैसा 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट, यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला है। विकसित भारत की मिशन को भारत के आम नागरिक ही पूरा करेंगे। नेक्स्ट, आप मेरी तरफ भी रखो अपनी क्या। और ये वित्त मंत्री कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। इसी भारत की क्षमता और सशक्तिता का विश्वास बढ़ा। हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास, सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। अब ये 5 एरियाज जो इनकी प्रायोरिटी है टू अचीव जीरो पॉवर्टी गोल, एंड आई थिंक द कॉम्प्लीमेंट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट इन लास्ट 10 years 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर 130-40 करोड़ की जनसंख्या में से 25 करोड़ लोग, पर पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको ऐसा भी नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि जब वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलाते हैं तो बीपीएल के जितने बेनिफिट थे उनसे वो डिप्राइव हो जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो ऐसा ना हो फिर से वो पॉवर्टी लाइन में चले जाए, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपने आप को संभाला है। ये उसी तरह से कि जैसे कोई बीमार होकर शुरू हो जाता है, बुखार के बाद आप कहते हैं ठीक है साहब तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, दवाई बंद कर दो, फिर से रिलैक्स हो जाए। तो इसलिए न्यू मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट जो दुनिया में आया है और भारत में उसका ये दृश्य बन रहा है। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी न्यू मिडिल क्लास, जो नए अभी उस श्रेणी में आया, और उनको कैसे वहाँ पर बचा के रखना, संभाल के रखना, सस्टेन रखना, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं जो आने वाली स्लाइड्स में हैं। दूसरा, 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी कंट्रोल इन दी एजुकेशन, कुशल श्रम, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। वैसे ही हमारा वो हो चुका है जो मुद्रा योजना है हमारी, जो बिना किसी ग्रेचुटी के जो लोन देती है युवाओं को अपनी रोजगार कमाने के लिए। पहले 10 लाख होता था, उसका लिमिट 20 लाख हो गया विदाउट एनी ग्रेचुटी और इंटरेस्ट। उसमें ऑलमोस्ट 65% आती वुमेन बेनिफिशियरीज। और किसान दुनिया की फूड बास्केट, ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए, मुख्य उद्देश्य ये जैसा पढ़ा गया था, विकास को तेजी से लाना, समावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में बहुत बड़ी दरार रही। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जैसे अभी इकट्ठे बैठे हैं ऐसे नहीं बैठते थे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर वाले सोचते थे कि ये तो सारे ब्लैक मार्केटियर हैं, चोर, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया खुद ही बोल के। और प्राइवेट सेक्टर वाले कहते थे कि ये सारे रिश्वतखोर है जो सरकार में बैठे, तो स्वयं रिश्वत घूस लेने के और कुछ करते नहीं। लेकिन मैं उस दिन कह रहा था, अभी सुबह ही बता रहा था एक जगह जहाँ दूसरा, मैं कहा देखिए जब आप बस में बैठते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि अगली सीट पे कौन बैठेगा। साधु भी वहीं बैठता है, शैतान भी वहीं बैठता है, चोर भी वहीं बैठता है और महात्मा भी वहीं बैठता है। लेकिन अगर कहीं रास्ते में बस खराब हो जाए, बाइक का तो बस का इस्तेमाल कम होता है, मैं अपने जमाने की बात कर रहा तो सभी नीचे होता था, ड्राइवर कहता था धक्का लगाओ, तो सिर्फ ड्राइवर रहता है सीट पे, बाकी सब धक्का लगाते हैं। तब साधु भी उतना ही धक्का लगाता है जितना एक शैतान लगाता है, बिकॉज द कॉमन गोल देन इज टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अगर आपने वाकई विकसित भारत में चलना है तो आपकी सबकी क्षमताएं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साधु की भी शैतान की, एंड यू हैव टू लर्न टू अनलर्न ईच अदर्स गुड एंड बैड थिंग्स। मुझे ये भी समझ आएगा कि इनके क्या गुण है वो मैं अपनाऊँ और इनके क्या गुण है मैं ना अपनाऊँ, और इनको भी एहसास होगा। तो और अगर आगे इससे आगे हमें बढ़ना है तो एज ऑफ साइलोज इज ओवर, वी
हैव टू मूव इन इंटीग्रेटेड फैशन। दुनिया के जितने भी देश आगे बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े कि वहाँ पर सरकार और गैर सरकारी साधनों में और सेक्टर में कोई अंतर कभी नहीं रहा। आज ये भी कुछ ही घंटे पहले मैं इनसे बात कर रहा था जब हम अंदर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में एक मुआहदा हुआ जो हमारी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जिसका हाल ही में गठन हुआ 3 महीने पहले, अभी आएगा शायद इसका जिक्र किसी स्लाइड में भी, उसका नाम अनुसंधान रखा गया। उसके और अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, और एक बहुत बड़ा निर्णय उसी दिशा में। और वो नेशनल रिसर्च साइंस फाउंडेशन जो अमेरिका की जो नासा की है वो 60-70% गैर सरकारी साधनों पर निर्भर है। तो इसकी आगे बात करते हैं घरेलू मनोभाव का उल्लास बढ़ाना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना, जैसे भी आपने टैक्स इत्यादि के बारे में चलिए आगे चले। धन धान्य कृषि योजना को स्पेसिफिक schemes which have been launched कि 100 जिलों को कवर करती हुई योजना वहाँ के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाने वाली, ताकि फोकस अटेंशन टू सम ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट्स, दी फार्मिंग सेक्टर इन दोस डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरा, बिहार में मखाना बोर्ड बना रहे हैं, ये तो बिहार स्पेसिफिक है क्योंकि वहाँ पर मखाना को बड़ी तरजीह मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड की दर बढ़ाना है, इम्पोर्टेंट डिसीजन, 5 लाख से 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, इसलिए 5 लाख कर दी गई है, 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख। और दलहनों में आत्मनिर्भरता की मिशन की दाल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है दालों में हिंदुस्तान में, और बहुत सारा इसका आयात होता है। जितना हमारा आयात कम होगा हमारा इकॉनमी बढ़ेगी, और इकॉनमी को बढ़ाने का यही तरीका है कि हमारा निर्यात बढ़े और आयात कम हो। तो बहुत साल पहले म्यांमार के यहाँ आए हुए थे बड़े वरिष्ठ व्यक्ति पर भोजन पर इकट्ठा बैठे, तो मैं जरा दाल ज़्यादा खाता हूँ, हालांकि वो कहते हैं कि बड़े ज़्यादा ऊंचे स्तर के लोगों का खान पान नहीं है, लेकिन तो मैं 2-3 कटोरी खा रहा, तो मुझे पूछते हैं कहने ऑल्सो टेस्ट वॉट यू आर टेकिंग, तो कर दीजिए। तो उन्होंने 2-4 चम्मच लिए तो कहते कैन आई हैव मोर, मैंने कहा यू कांट हैव मोर। मैं कहता हूँ बिकॉज यू नो all this has been imported from Myanmar. If you start consuming, you will not export to us. तो म्यांमार में बहुत ज़्यादा पल्सेज होती है और हमारी एश्योर्ड मार्केट है, तो सारी की सारी यहाँ आती है और हम सारी खा जाते हैं। तो नेचुरली जो हमारी कंजम्पशन अगर हमारे लिए भी होगी तो नेचुरली एज बिजनेस कम्युनिटी यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो, क्रेडिट कार्ड गारंटी का कवर सूक्ष्म उद्यमों के लिए बढ़ाना 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़। प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जूता और चमड़ा 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होने की उम्मीद, क्योंकि लेदर इज वन सेक्टर, जैसे मैंने अभी कहा कि यू टू गो रीच दैट रैंकिंग यू हैव टू एक्सप्लोर दी अंडर एक्सप्लोर सेक्टर। हमारा वी आर अमंग दी टॉप 2-3 एक्सपोर्टर्स ऑफ लेदर, लेकिन रॉ लेदर जाता है। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रखा, हमारा जो चेन्नई का इंस्टीट्यूट है CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं, तो लगभग 70-80 साल का दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट, हर किस्म का लेदर वो बनाते हैं और वो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स। डायबिटीज वाले के पैर के लिए उसके तरह किसी और का पैर का वो पूरा स्कैन करके, और अब वो कस्टमाइज्ड शूज़ भी बनाने लगे और कुछ नॉन लेदर एलिमेंट्स को फ्यूजन करके भी। इतना कुछ है, लेकिन हम उसका निर्यात नहीं करते थे, जैसे खादी काम नहीं करते थे। अब खादी 1 लाख करोड़ का टर्न हुआ पिछले साल, जो खादी यहाँ नहीं पहना जाता था वो अंग्रेज पहनता है, और 5-5 लाख का कुर्ता बिक रहा है। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड और SMSE में निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाना। चलो, आंगनबाड़ी और पोषण, ये पोषण कार्यक्रम पहले से सरकार का चल रहा है, उसमें 8 करोड़ बच्चों और उनकी माताओं के लिए पोषण की सहायता, उसको थोड़ा सा फॉस्टर किया जाए। स्वास्थ्य सेवा में ये बहुत इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि एक बड़े इकोसिस्टम के साथ ये फैसला जो होता है। 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें और 200 कैंसर केंद्र। कोशिश ये रहेगी कि लगभग हर जिले को कवर किया जाए, तो कैंसर की प्रवृत्ति जगह हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गई है। जो लोग लंबा जीने लगे, जो देर उम्र के कैंसर से बीमारी थी वो भी लगी होने,
हाल ही में पिछले ही साल 70 वर्ष से आयु के ऊपर यूनिवर्सल कर दिया गया कवर, हेल्थ कवर। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा ऑफ हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग दी एल्डर सिटीजन्स। यानी मेडिकल सीटें भी बढ़ गई, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ गए, अस्पताल भी बढ़ गए, कैंसर सेंटर भी बढ़ गए और इलाज भी मुफ्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी वेलकम सब कोई मुफ्त है, बट जहाँ तक सरकार की जिम्मेवारी है उसको निभाने का प्रयास। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा जो डिसऑर्गनाइज जो काम करने वाले लोग हैं, बैंकों में बड़े हुए 30,000 की सीमा वाली यूपीए की भिखारी, उनके लिए अलग अलग प्रावधान, क्योंकि गिग वर्कर्स के जो श्रम लोग हैं इनके ऊपर कभी किसी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। अब ये भी एक साइंटिफिक सोच है कि यदि आपको उस लेवल पर पहुंचना है तो यू हैव टू रेज दी लेवल ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये नहीं हो सकता कि एक वर्ग विकसित हो जाए दूसरा पीछे रह जाए, एक क्षेत्र विकसित हो जाए दूसरा विकसित रह जाए, या रेडी वाला गरीब रहे, क्योंकि ओवरऑल तो आपका जो बनेगा पर कैपिटा वो तो उसको भी मिला के बनेगा। यानी मैंने 100 रुपया कमा लिया, भाई साहब ने 1000 कमा लिया और बगल वाले ने 0 कमाया, 1 कमाया, तो हमारा कुल मिला के तो तीनों का वैसे ही रहा हाल। तो इसलिए रेडी वालों के लिए भी जैसे एक योजना शुरू कर दी गई थी कि उनको वजीफा देना, जब अभी तक नहीं था, वो अभी इसमें नहीं है, लेकिन वो पिछले बजट में है। आगे चले, शिक्षा और कौशल, ये एक रह गया पॉइंट। इसकी बात अभी आपने की भी थी कि 5000 अटल टिंकरिंग लैब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग उनको लड़कपन से कम उम्र से देना, ताकि उनको अपने एप्टीट्यूड का भी एहसास हो और उसके लिए उनका पहले से ही माइंडसेट बने। और 6500 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। चलिए ठीक है, वो मैंने बहुत आगे कोई बात नहीं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 3 वर्षीय प्लान करना और राज्यों को 50 साल के ब्याज से मुक्त करना। ये तो खैर स्टेट गवर्नमेंट को जो शेयर जा रहा है उसको लेकर के है। जल जीवन मिशन का विस्तार, ये भी एक नॉवल आइडिया था कि हर घर जल, उसी को आगे बढ़ा करके 80% ग्रामीण घरों तक अपना पानी पहुँचाना, ताकि 2028 तक वो हमारा सेचुरेशन हो जाए। कोई भी घर, जैसे मैं 7 साल रहा नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी, वहाँ एक जगह है जो आप पढ़ते हैं उसमें किताबों में, और करोड़पति पे उसका नाम मिलता है चिरापुजी। कहते हैं सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता होगा कि वहाँ पानी नहीं मिलता, क्योंकि जब बारिश होती है तो फ्लड आता है और सारा गंदा पानी, तो घरों में पानी नहीं होता। वैसे बाहर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप इन रेन। अभी हमने वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की। हमारे यहाँ से 1-2 संत गए, एक गुजरात की है संत समाज से, एक हिमाचल की है, उनको कुछ सहयोग सरकार की ओर से दिया, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारे पास सोर्सेज थे, लेकिन फिर भी हमारे लोग डिप्राइव थे। अर्बन चैलेंज फंड जो शहरों के उत्थान के लिए, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, ये स्टार्टअप के लिए, जो आप कह रहे थे कि अगली जनरेशन के लिए, ये कह रहे थे ना, इनको एक बड़ी बुद्धिजीवी महिला मिली, देश भर में नहीं मिली, विदेश नहीं तो मिली, ऐसी सवाल है। तो उसने इनको समझाया कि जो मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। ये भी डीप टेक फंड है, ताकि आने वाले जो बच्चे हमारे अभी जिनकी जो प्रवाह चढ़ रहे हैं, उनके लिए स्टार्टअप के लिए बुनियाद बने। पीएम रिसर्च फेलोशिप ये 10,000, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, और दूसरा जीन बैंक, ये भी एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक रहेगा, ये भी अगली पीढ़ी के लिए। ये जो प्लांट रिसर्च है, क्योंकि अब आपको जेनेटिक प्लांट्स, जो हमने मणिपुर में आम उगाए थे आज से कोई 5-6 साल पहले, और मैंने कहा फिर मैं वहाँ से फिर बाहर चला गया, तो मैंने कहा अगले साल देखो हम संतरा उगा के नागपुर ले जाएंगे। तो अब वो ज़माना आ गया। आपको शायद मालूम हो कि ना हो, ट्यूलिप के फूल जो चढ़ाए गए राम मंदिर में अयोध्या में, वो पालनपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ उगाए थे हिमालय से। नहीं तो बिन मौसम के ट्यूलिप कहाँ होता है जनवरी के महीने में, जब वो आते हैं। तो अब वो ज़माना आ गया है। इसी तरह से लखनऊ में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसने 108 पत्ते का कमल उगाया। 108 का बड़ा महत्व रहता है, 108 पेटल लोटस। तो फिर मैं गया वहाँ देखने, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको बाहर लगा
सेल्फी पॉइंट बनाओ। तो वो इतना लोकप्रिय हुआ लखनऊ में जितने बच्चियाँ आती उसके सामने होकर फोटो खींचती कि 108 होते हैं। तो आगे 108 के कई मतलब निकलते हैं और लोटस के भी कई मतलब निकलते हैं कमल के। तो अंततः क्या हुआ कि करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ये फूल जो बना है कौन सा फूल है, गेंदे का गुलाब का, जैसे वो पूछते हैं। तो पूछा किसी को मोह लगाओ, ये करो वो करो। तो वो महिला पहले बेचारी परेशान रही, बाद में उसने बताया। उससे एक और चीज़ सीखने को मिली। तो उसको जब उसने पूछा क्योंकि हर इंसान से कुछ सीखना चाहिए, तो उससे पूछा कि तुमको कहीं अखबार में पढ़ा, वो कहती था वो अखबार तो आजकल पढ़ती ये भी बात समझ आई कि आजकल अखबार पढ़ना बंद हो गया है। फिर उसने कहा कि साहब तुमको टीवी में देखा, बेहतर नहीं था, टीवी की खबरें देखने में कब से बात हो गई, वहाँ तो सिर्फ चिल्लाना होता है। तो फिर कहती तो पता कैसे चला, तो लखनऊ गई, लखनऊ की। फिर सोचने लगी, कहती शायद सोशल मीडिया पे देखा। तो फिर मुझे समझा, मैं सबको कहा, मैं देखो प्रचार प्रसार के लिए सबसे अच्छा बात सोशल मीडिया। और आपने देखा इलेक्शनों में आज अखबार वाले कितने बेचारे परेशान रहते थे, पहले तो कितना इनका सीजन चलता था। तो वो इसका कहने का तात्पर्य ये कि ये जो स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, अगर इनका प्रचार प्रसार करना हो तो हम सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स को क्रिएटिव ढंग से यूज़ करें। चलिए, उसके लिए जीन बैंक, तो ये जीन बैंक ह्यूमन्स में भी है, यहाँ पर तो आगे अनाउंस किया गया। एंड आपको जो कि इंटरेस्ट है तो ये भी ग्लैड टू नो कि हमने 10,000 इंडिविजुअल्स का जीन सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर दी और हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 1 मिलियन। तो जब 10 लाख तक हो जाएगा तो उससे उनका पूरा एक जन्म पत्री बन जाएगी। यानी एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा आप बता सकते हैं कि पहले क्या आने वाले समय में इलाज के और स्वास्थ्य के जो हेल्थ केयर प्रक्रिया है उनके भी मापदंड बदल जाएंगे। वैश्विक व्यापार के लिए गैर खैर ये है कि जो बाहर से सामान आता है उसकी बाधाओं को, उसकी रेगुलेशन को कम करना, ताकि जो आपका इम्पोर्ट का सामान है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कम हो सके। एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसेज बनाना, वो भी उसी के लिए आगे चलो आप, ताकि बोर भी ना हो हमारे। कर सुधार तो आपने बता ही दिया। एक तो नया आयकर विधेयक आ रहा है, कल लगा दिया वित्त मंत्री जी ने, जिसमें अब असेसमेंट ईयर, और देखिए वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने क्या होशियारी की हुई थी, वो ऐसा भरते हैं फॉर्म को समझ नहीं आएगा। वो असेसमेंट ईयर कौन सा है, वो कौन सा है, पिछला साल है कि अगला साल है, कोई पता नहीं चलता है। फिर उस अगले को क्या कहते थे, नहीं एक असेसमेंट ईयर होता है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो समझ नहीं था। अब उन्होंने उसको सरलीकरण कर दिया टैक्स ईयर। तो इस तरह से इसको भी सिंप्लीफाई किया और साथ में अब तो खैर वो बिल आएगा चर्चा में। बीमा के 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया FDI का। इसका बहुत बड़ा लाभ रहेगा जो आपकी स्पेस में एकदम इकॉनमी बढ़ रही है। जब स्पेस खोली गई आज से 4 वर्ष पहले तो उसका कुल देश की स्पेस हमारी वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत हार्डली निगलेजिबल, आज 8 बिलियन है। और जिस तरह से उसकी तेज़ रफ्तार से वो बढ़ रही है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है प्रोजेक्शंस के कि नेक्स्ट 7-8 ईयर्स के वो 5 टाइम्स हाई 24 बिलियन यूएस। तो इसलिए संभव हुआ कि उसमें प्राइवेट निवेश भी अलाउड है और FDI भी है। और छोटे छोटे बच्चे हज़ारों करोड़ों रुपया FDI लगा के 2-3 लड़के हमारे इकट्ठे होकर के हैदराबाद एयरपोर्ट के बगल में उन्होंने रॉकेट बनाने की फैक्ट्री शुरू कर, आई थिंक द फर्स्ट फैक्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर। चलिए, अब ये तो आपने बताया, ये जो 12 लाख तक हुआ, और ये 12 लाख तक जो हुआ है ये मध्यम वर्ग को तो ही है और सबसे ज़्यादा चर्चा भी इसी की हुई। लेकिन हुआ क्या कि इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि जो कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें दूसरी थी वो रह गई इस बजट की। तो मैं उसमें एक सुबह ही देख रहा था, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के कारण इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग भूल गए कि एक बार ग्रेटेस्ट एकेडमिशियन ऑफ 20th सेंचुरी। तो 34 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उनको वाइस चांसलर बनाया था। जब सारे 3-4 यूनिवर्सिटीज होती थी पूरे हिंदुस्तान में और फैकल्टी सारे अंग्रेज होते,
तो इतना अद्भुत प्रतिभा का मालिक एक व्यक्ति को मिला। लेकिन अब क्या हुआ तो घर बैठे गलती कश्मीर आंदोलन देखो बहुत चीज हो, इसीलिए इसमें हम भूल गए। बहरहाल इसमें मैं एक छोटा सा आकलन आपको बता रहा था। इन्होंने बताया उसमें जो हमें चीज जो फील करेगी वो मैंने टेबल सा बना रहा था। ये 12 लाख तक तो फ्री हो गया, लेकिन 2014 में क्या स्थिति थी और अभी क्या, तब हमारी लिमिट थी 2.5 लाख। तो एक तो उतने गुना बढ़े, 5 गुना। 2014 में 8 लाख पर हमें टैक्स लगता था 90,000, आज हो गया 0। पिछले साल भी 30,000। 2014 में 12 लाख पर एनम पर लगता था 1.9 लाख, आज हम 0 हो गए। एक कितना फायदा हो रहा है। और 24 लाख जब 12 से ऊपर लग रहा है तो वो भी 2014 में 5.5 लाख था, आज वो केवल 3 लाख। तो मुझे लगा कि कुछ वैल्यू एडिशन मैं भी करूँ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया तो कुछ अलग से गीत गाऊंगा तो थोड़ी आगे बात करेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सब्सटेंशियल, पर ये बात तो है, लेकिन इसकी आड़ में जो पूरा पैकेज बन रहा है इकोनॉमी का, जिसमें भी न्यूक्लियर मिशन भी आएगा शायद अगली स्लाइड में। आओ चलो बेटा, ये राष्ट्रपति जी का संबोधन आगे चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उसमें जो स्टार्टअप के लिए विस्तार, 5 साल तक जो उनको रियायतें दी गई थी उनको और आगे बढ़ा दिया गया। अंतर्देशीय जहाज़ों को टन भार का योजना, जो शिपिंग ट्रांसपोर्ट है, आगे 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास कोष, अब डीप सी मिशन शुरू किया है, उसी में से ये भी आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा समुद्र में जो इतनी अपार संपत्ति है जिसका अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं की। वी हैव मिनरल्स, वी हैव मेटल्स, वी हैव बायोडाइवर्सिटी, वी हैव फिशरीज। तो अगर वो सब चीज़ें एक्सप्लोर हो जाए तो हमें 2047 तक भी उतार दिया। इसी तरह से 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना, ये हवाई जहाज के लिए। और आखिर में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीएम गति शक्ति तो एक सफल प्रयोग है जिसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया, क्योंकि वो एक डाटा है। क्योंकि जब भी आप काम शुरू करते हैं तो पहले क्या हुआ करता था, आप देखते थे कि पहले खुदाई करते थे तो सड़क बिछा देते थे पीडब्ल्यूडी वाले, दूसरे दिन आते थे पीएचई वाले, नालियाँ डालते थे, खुदाई करते थे, तोड़ देते थे, तीसरे दिन कोई और आता केबल वगैरह रहते, तो सारा साल आपकी सड़क की खुदाई चलती है। अब गति शक्ति के तहत वो मल्टीपल लेयर्स हैं, वो आपको डाटा दे देती है कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर पाइप है, तो उसको आउटसोर्स करने करके मतलब प्रॉपर्टी बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर शायद वो अलग है। ये महत्वपूर्ण फैसला है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, और अगर खोलेंगे नहीं तो आप फिर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इससे पर भारत को ये मिलती है कि इंडिया वॉज नेवर टेकन एज अ सीरियस कंट्री एज फार एज दिस न्यूअर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम समझते हैं तो हमारी समझ से बाहर है। आज इंडिया उसके लिए टारगेट रख रहा है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट होंगे, 2050 तक हम 50% मिशन फ्री हो जाएंगे, और 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। सो नाउ वी आर प्लेइंग दी टारगेट्स फॉर दी अदर्स टू फॉलो, और अगर वो करना है तो ज़रूरी है कि हम उनकी स्ट्रेटेजीज में भी चलें। कई बार क्या होता है कि हम सेल्फ रिलीजन कहते हैं कि साहब हम वैसा क्यों करें, हमारा तो ये है। लेकिन इफ यू हैव टू कम्पीट ग्लोबली, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू एक्सेल इन ग्लोबल पैरामीटर्स आल्सो इक्वली एट द सेम टाइम। अब आप कहें कि मैं क्रिकेट क्यों खेलूँ, मैं तो गुल्ली डंडा और कबड्डी मेरा गेम है, बहुत अच्छा, किसी ने रोका नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको तभी मानेगा जब आप उसको जाके सिडनी में क्रिकेट में हराओगे, गुल्ली डंडे से आपको मानेगा। तो यू हैव टू बीट अदर्स ग्लोबली। चलो आगे, मेरा ख्याल सब हो गया। तो अब कहने का तात्पर्य ये है, तो मेरे बैठने का टाइम खत्म हो गया। इसके बाद हम इंटरेक्टिव भी करते हैं।
दो बातें तीन ये हैं कि इसमें जब मैंने कह रहा था शुरू में कि फोर्थ रेवोल्यूशन या फ्यूचरिस्टिक, तो उसके 3-4 बिंदु हैं जो इस बात को अंकित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। एक तो ये जो न्यूक्लियर सेक्टर है, अभी बात करते हैं न्यूक्लियर। अब क्या हुआ कि जो 12 लाख की रियायत मिली है उसकी, जो 12 लाख की रियायत मिली है उसकी आड़ में ये बातें रह गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई है दूरगामी तो यही है। आने वाले दिनों में इसकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान में होगी, विदेशों में भी। हिंदुस्तान उठ खड़ा होगा। पहले तो ये सोए हुए थे, जैसे स्पेस को देख करके वो घबरा रहे हैं। दूसरा, जो स्टार्टअप्स के लिए एडिशनल सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपया और उनकी रेगुलेशन उठा रहा है, क्योंकि स्टार्टअप का माइंड सेट हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुजरात में तो इतना नहीं है, लेकिन बाकी प्रदेशों में सरकारी नौकरी का एक दिमाग में कीड़ा है, वो निकलने को तैयार नहीं है, खासतौर उत्तर भारत में। गुजरात में बिल्कुल नहीं है, आंध्रा में भी कम है, लेकिन गुजरात में स्टार्टअप का भी नहीं आया था। हम अभी भी रिवायती व्यवसाय में, लेकिन जो नए आयाम आ रहे हैं उसकी तरफ हम इससे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि इससे हमें कुछ मुनाफा हो रहा है। मैंने एक और प्रयोग किया, 2018 में हमने शुरू किया था, पर जिसको आज पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है, लेवेंडर की खेती। और लेवेंडर से आज हमारे पास 3,000 स्टार्टअप है, लाखों में खेल रहे हैं। छोटी छोटी इतर की शीशी उनकी 15-15 हज़ार रुपये की बिक रही है। अभी 2 बच्चे बंगलौर से कॉर्पोरेशन की नौकरी, कॉर्पोरेट की छोड़ करके आ गए। हमने पूछा कि क्यों, तो बोले साहब आप 12 घंटे कंपनी वाले काम लेते और इससे ज़्यादा कमाई तो हम यहाँ पर कर लेते। और दूसरा ये भी उससे प्रमाणित हो गया कि स्टार्टअप होने के लिए, क्योंकि आपके अपने रिसोर्सेज है, हमने स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ले लिया वेस्ट से कि IT हो, PhD हो, ऐसा नहीं है। हमारा सेक्टर तो एग्रीकल्चर है, हमारा सेक्टर तो ओशन सेक्टर है। और ये जो लेवेंडर वाले हैं, इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं, बट दे हैव द पैशन, दे हैव द एप्टीट्यूड। टेक्नोलॉजी सरकार सिखाती है, बाकी वो आपको मोबाइल सिखा देता है, और इतनी सारी स्कीम्स उपलब्ध हैं। तो हमारा काम, आपका हमारा ये रहेगा कि इन बच्चों का माइंडसेट उस तरफ ले जाना। बाकी सरकार तो अपना काम करेगी। इसी तरह इनोवेशन को लेकर के 20,000 करोड़ और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपया रखा गया। ये एक ऐसा निर्णय है जिसका अक्सर जिक्र नहीं आ रहा कि आने वाले समय में आपकी बैटरी के लिए छोटे छोटे रिएक्टरों पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप घरों में चला रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर के दौर में आ जाएंगे तो बड़ा बड़ा प्लांट रखने की जरूरत नहीं होगी। और ये होते हैं कि जो 300 किलोवाट से कम, और हिंदुस्तान में इसको बनाने का इसलिए फायदा कि हमारे जो मौजूदा रिएक्टर हैं वो भी छोटे स्केल के हैं, तो उनको सिर्फ कन्वर्ट करना है उन्हें टेक्नोलॉजी, बल्कि वहाँ पे बड़े बड़े बनते हैं। आने वाले समय में ये आपका आम चलन बन जाएगा। आपके घर पे आप रोजमर्रा की बैटरियाँ भी इसी से बनेगी। तो उस दिशा में हम चले हैं। और जीन बैंक का, जिसका भी मैं कह रहा था कि प्लांट्स की, वो एक और। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि ये सरकार एक निरंतरता के साथ काम कर रही है, सोच में भी निरंतरता है। जो पहले 100 दिन रहे मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में, जिसको मीडिया वाले कभी कहते हैं मोदी 3.0, जो भी उसका मतलब है कि 100 दिन पहले, तो उसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण फैसले थे। एक था कि स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया। दूसरा था NRF, ये जिसकी अभी जिक्र हुआ था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी पहले 100 दिन इसकी घोषणा चुनाव से पहले हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद, तीसरी बार सरकार बनने के बाद 50,000 करोड़ रुपया निर्धारित करने का की घोषणा उस समय हुई। एक और फैसला बायो E3 पॉलिसी, जो इसमें जुड़े हैं इन सेक्टर्स में, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनवायरनमेंट। क्योंकि आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहेगी, दैट विल बी बायो इकोनॉमी। अब हमने गुजरात में नौकरी का चलन नहीं है, लेकिन ये नए सेक्टर में अभी जाने का चलन शुरू करना है, वो नहीं है। क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे IT था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2019 के 90 के दशक, आने वाले समय में, और इकोनॉमी विल शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द रिसाइकलिंग सेक्टर। अभी बंगलौर में कुछ बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने वो शायद स्टार्टअप का नाम फाइन रखा है, क्या वो एनिमल फ्री मिल्क बना रहे हैं। अब लैब में दूध बनेगा, लैब में ही मटन बनेगा। आप वेजिटेरियन हैं तो क्या हुआ, आपको मटन आपके मुताबिक मिलेगा। यानी बिकॉज
आने वाले वक्त में हाउ टू मीट द नीड्स ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। इतने आप माल मवेशी पशु कहाँ रखेंगे, तो ये सारा लैब ड्रिवन होगा। फिर उसके अलावा रिसाइकलिंग, ये वेस्ट कहाँ जाएगा। आपको मालूम है कुंभ में हर रोज जो आजकल चल रहा है कम से कम 1 मिलियन लीटर ये फीकल स्लज सुबह निकल रहा है। आखिर इतने लोग जा रहे हैं, शौच को ही जाते तो कहाँ जा रहा है। कभी आप से कितने होके आए, कोई बदबू आई, बहुत सारे सज्जन गए होंगे कभी ऐसी। अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाता तो वहाँ पर तो बीमारी फैल जाती और इतनी बदबू होती, लोग भाग जाते। तो वहाँ पर एटॉमिक एनर्जी जो हमारा दूसरा विभाग है उसने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं जिसका नाम है FSTP। आजकल ऐसे एक्रोनिम में बोलो ना तो बच्चों को पसंद आता है, चाहे आप ABC XYZ कह रहे हो, बाकी घर जाके देखना क्या था गूगल पे। तो FSTP मीन्स फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट वो लगाए गए हैं। वो रेडिएशन के माध्यम से उसको वसूल करते हैं और ये डिस्पोजल ऑन दी स्पॉट। ये तो कहाँ कैरेज कहाँ करोगे, ये कहाँ जाओगे, इतने मेकशिफ्ट टॉयलेट्स वगैरह कहाँ जाएंगे। तो आने वाले वक्त में उसको कैसे निवारण होगा, इसीलिए हमारा रिसाइकलिंग का शुरू हो। और इसी स्लज को, ये जो प्लास्टिक टूटा यही हमारी गलती बनती है और उसके लिए हमारी बायो इकोनॉमी पॉलिसी। और हमें उसमें ये एडवांटेज है कि वी हैव अबंडेंट बायो रिसोर्सेज। हमारा हिमालय भी बायो रिसोर्स से बड़ा है, हमारे समुद्र भी बड़े हुए। और एक और महत्वपूर्ण फैसला मैं जोड़ रहा हूँ किस तरह से मौसम मिशन मौसम 2000 करोड़ रुपए की। तो आप देखिए कि ये सारे फैसले बड़े दूरगामी भी थे, फ्यूचरिस्टिक भी थे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं। ये रिलेटेड इकोनॉमी से, लेकिन है ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। और एक बात और, फिर बाद में हम आपस में बात करते हैं, जो बात अक्सर नहीं की जाती वो ये कि वोट और ये तो सरकार निरंतरता से काम कर रही है, दूसरी निष्ठा के साथ। अब आज के ज़माने में बिना तर्क के बात नहीं की जाती। ये नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुना है या आप कह दें तो मैं सुनो। आजकल तो बच्चा भी आपकी बात मानता है कि नहीं। आप कहते हैं फलां को वोट दो, कहते हैं पिताजी आपको क्या मालूम, आओ मैं फेसबुक पे दिखाता हूँ कितना दुष्ट व्यक्ति है, तो उसके साथ भी यू हैव टू रीजन आउट। तो ऐसे ज़माने में मैं आपको एक तरफ ये समझाता हूँ जो किसी लोगों को समझ में ध्यान में नहीं आता। इस सरकार की कन्विक्शन का आपको एहसास होगा। जो वोट ऑफ अकाउंट होता है और इलेक्शन से पहले जो एक काम काज दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉजिक, बिकॉज इन दिस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यू लीव दैट प्रायोरिटी टू द इनकमिंग गवर्नमेंट कि उसकी क्या मान्यता है, क्या प्रायोरिटी है, वो बच रहा है। लेकिन वो 4-6 महीने कैसे लोगों को वेतन मिलेगा, कैसे काम चलेगा, उसके लिए मैं फर्जी एक बजट बनाता हूँ। उस बजट में जो इलेक्शन से पहले रखा गया उसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे। उसमें ये घोषणा की गई कि हम इलेक्शन के बाद वायबिलिटी फंड फॉर स्पेस स्टार्टअप देंगे 10,000 करोड़। उसमें ये कहा गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हम घोषणा करते हैं, आगे का बाद में चलाएंगे। ये वोट ऑफ अकाउंट में आ रहा है, हालांकि राशि का वितरण बाद में होगा। और उसमें ये कहा गया कि हम मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे जिनका नाम होगा भारतीय। अब मुझे बताएं, जो पार्टी चुनाव के लिए जा रही है वो आमतौर से अपेक्षा से की जाती है क्योंकि सिलाई मशीन की घोषणा करेगी, मुफ्त लैपटॉप की करेगी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सरकार थी जो कह रही है कि वोट ऑफ अकाउंट में कह रही है कि इतने पैसे हम स्पेस स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित करेंगे चुनाव के बाद अगर हम सत्ता में वापस आए, और इतने हम मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द करेज एंड ऑल्सो द करेज ऑफ conviction of Prime Minister Modi. तो इसलिए मैंने कहा कि this budget is simultaneously futuristic और simultaneously revolutionary and carries a sense of continuity and consistency. और इसलिए मेरे ख्याल से वार्तालाप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में ज़्यादा आई होंगी और कुछ एक और बातें जो एक दूसरे से सीखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें गुजरात से आई और केंद्र में लागू की गई। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो डिजास्टर अथॉरिटी यहाँ बनी थी, गुजरात डिजास्टर, फिर वहाँ की सरकार को समझ तो उन्होंने बनाई। तो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर इंटरव्यू कर दिए थे कि सरकारी नौकरियों में कोई शिकायत ना रहे, फिर वहाँ जाकर के केंद्र में बाद में हुआ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से वी पिक अप सम क्यूज एंड विल आल्सो बी एबल टू शेयर विद द रेस्ट ऑफ द नेशन। थैंक यू वेरी मच।
Thank you very much, Honorable Minister Sir, for your deep insights into the budget. Now floor is open for the question and answers. If you have any question regarding budget, you can ask. जरूरी नहीं है क्वेश्चन, आप बता भी सकते हैं, कुछ समझा भी सकते हैं, कोई क्लास में ऑब्जर्वेशन कमेंट। नमस्कार सर जी। नमस्कार, आई एम डॉक्टर कृपा भट्ट फ्रॉम GLS यूनिवर्सिटी। और जैसे कि आपने इतना महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिया बजट के बारे में, एक लक्ष्य इसमें था कि 70% महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों में योगदान रहेगा। तो सर ये थोड़ा डिटेल में प्लीज समझा सकते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता भी दी गई है और उनको इंसेंटिवाइज किया गया है टू टेक द लीड। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना है। दैट इज ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में लेक्चर किया जाए या फिर ऐसे दे दो लिखने को, वुमेन लिबरेशन जैसे आप 10वीं की बात होता है। तो पहली बार PM आवास योजना के तहत ये मोहलत है कि जो मकान होगा गृहिणी के नाम होगा। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। पिछले साल मेरे पास एक छोटी कामों की लड़की आई मेरे मासी जो बड़ी बेचारी परेशान थी, तो बोली मेरे वो क्या हुआ, वो उसका जो बच्चा हुआ वो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज था। तो उसके बाद कह रही है मुझे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, तो दे डोंट ट्रीट मी वेल, तो आर्थिक तौर पर। तो मैं कहूँ बेटे तू फिक्र मत कर, तू PM आवास योजना में मकान बनाना तेरे नाम होगा, फिर देखाएंगे तेरे। तो ये जो सुधार है, इसको आप वुमेन को एम्पावरमेंट के जरिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसी तरह मुद्रा में, और दूसरा ये है कि अब इससे क्या हो गया कि वुमेन का माइंडसेट बदल गया है। अब ये जो 60-70% मुद्रा योजना में वुमेन ले रही है, वो इसलिए खुद आगे आ रही है। अच्छा, इसी तरह से पहले जमाना था, आप बात करते थे वुमेन पार्टिसिपेशन, अब वुमेन पार्टिसिपेशन का दौर खत्म हो गया, अब हो गया वुमेन लेड। स्पेस की हम बात करते हैं तो हमारे कई एक ऐसे मिशन, जो आपने आदित्य मिशन सुना होगा, जो सोलर मिशन है, सूरज के रेस्तों में, उसकी हेड जो है वो निराज एक महिला है, तमिलनाडु की मुस्लिम महिला, वो है हेड। और आपका जो चंद्रयान 3 था वो कल्पना, वो नंबर 2 हेड वो है। तो कहने का तात्पर्य कि अब चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, उससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है और महिलाओं को सशक्तिकरण उस तरह से भी हो रहा है और सरकार से भी हो रहा है। ये पहली बार है कि सरकार ने महिलाओं के लिए तो संसद और विधानसभाओं में भी वो आरक्षण कर दिया है। तो ये, और जब एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो शी विल बिकम द मास्टर ऑफ हर ओन डेस्टिनी। पहले क्या होता था कि सिविल सर्विसेज में 5% आती थी महिलाएं IAS में, आजकल लगभग 30%। और टॉपर वॉपर तो आती नहीं थी। 3 साल ऐसे गुजरे, 2015, 16, 17, तीनों बार टॉपर लड़की है। मुझे नाम भी याद है क्योंकि मैं उनके साथ बैठता हूँ, उन्हीं से सीखने को मिलता है। तो भाई साहब के साथ बैठेंगे तो मेरी वोट गिरेंगे और मैं उनकी गिरूँगा, तो उनसे सीखने को। तो पहले बार मेरे ख्याल लड़की थी वो ईरा सहगल। दूसरी बार एक आई बंगलौर की, कर्नाटका की शायद, नंदिनी के क्या। तीसरी बार आई एक टीना टाबी। 3 लड़कियां। चौथी बार आया एक हैदराबाद से। मैं यार तुमने तो जिम से थोड़ा नहीं, तो ये लगा था कि ऑटो गई। तो अब क्या हो गया है कि एक तो सरकार ने जो थोड़ा सा पुश दिया, उससे ये भी जाहिर होता है कितनी बड़ी क्षमता, कैपेसिटी, पोटेंशियल था हमारे पास, वुमेन पोटेंशियल जो रुका पड़ा था, जो कि दरवाजे बंद हुए थे। और वही स्पेस सेक्टर में देखने को आप आर्काइव में जाइएगा, सारा भाई की आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो गुजरात की रहने वाले थे। यहीं पर उन्होंने ऐसे साल यहीं पर स्थापित किया सबसे पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर।
उनका जो म्यूजियम बना है वहाँ पर एक चित्र है, बाईसाइकिल के ऊपर सामान लेके जा रहे हैं। यानी देखिए कितनी प्रतिभा, कितना पैशन, कितनी निष्ठा थी, कितना जुनून था, लेकिन साधन नहीं। तो आपने साधन भी दिया, अवसर भी दिया। देखिए सीए में भी 35% छूट। और बहुत ये हो गया कि पहले जमाने में मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें मैंने सरकार से, केंद्र सरकार से 3 मेडिकल कॉलेज, और जो सबसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट है उनमें 3। और मैंने कहा कि इसलिए कि उन जिलों में हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों को मेडिकल कॉलेज का एडमिशन मिलता, वो घर वाले नहीं भेजते थे कि जब कौन भेजेगा अहमदाबाद, वहाँ कहाँ रहेगी, क्या करेगी। तो एक वो दुविधा खत्म होगी, आपको अवेलेबिलिटी। दूसरा ये मिल गया आपको, पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। ये आर्मी वालों ने एक बनाया था, अब हम महिलाओं पर ही शुरू हो जाएगा संविधान का, तो इसके बाद बंद करेंगे, नहीं तो ये कहेंगे कि संविधान बजट पे था कि महिलाओं पे था। तो आर्मी वालों ने शुरू किया सुपर 35, नहीं इसलिए कि इससे हमको सीखने को मिलता है। तो वहाँ एक छोटी बच्ची थी, 12वीं जमात के बाद, कक्षा के बाद उसको IIT, वो क्या करते हैं, जो गरीब घरों से बच्चे होते हैं, किसी का कि पिता माता काम कर रहे हैं घरों में, हाउस मेड का काम जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तैयारी कराते हैं IIT JEE एग्जाम की। और उसमें से लगभग 15-18 बच्चे 35 में से उनके IIT चले जाते हैं, उतरे NIT। इतना अच्छा वो करते हैं, आर्मी ने शुरू किया। तो यहाँ पर भी है वो गुजरात अकेडमी, मगर वो तो थ्रू ऑनलाइन है ना, ये बच्चों के लिए। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, 12वीं कक्षा के बाद से IIT कर लिया। पूछने पर पता चला कि वो वहाँ सोपुर, वो कश्मीर की, जो आप खबरों में देखते हैं, बड़ी मिली ऐसी, और बाद में कोविड से पहले उस जमाने में बड़ा आतंक हुई था। तो उसको मैंने फिर दिल्ली बुलाया, वो पहली बार दिल्ली है, उसको घुमाया हुआ है। तो फिर मैंने उसको पूछा, तो मैंने कहा बेटे जहाँ तुम है ना, वहाँ कोई कोचिंग सेंटर है ना, बाहर जा सकते हो, बाहर गोलीबारी हो रही है, तो तूने तो कमाल कर दिया, तूने कैसे किया? तो जेल से निकाल दिए। अंकल 8 months 14 hours, सब कुछ इसमें है। 8 months 14 hours, 8 महीने सिर पे तेल डाल के 14 घंटे पढ़ाई गए। मैंने कहा बेटे मुझे भी किसी ने बताया होता, मैं भी यही करता, तू देर से नहीं। तो अभी क्या है कि इससे आपका एस्पिरेशनल इंस्टिंक्ट ज़्यादा, जब आपको लगा कि आई कैन ऑल्सो बी देयर, पहले तो गिव अप किया था ना कि साहब यहाँ वो हमारे लिए है ही नहीं, कोई बड़े प्रभावी 1200 इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, वो इससे बड़ा लर्निंग हो गया, टेक्नोलॉजी से भी लर्निंग हो गया। ये जो नए रिफॉर्म्स आए, इंटरव्यू खत्म हो गए। अब तो गरीब घरों के बच्चे, हमारे बहुत सारे लोग जो सुबह सैर करने जाते हैं, वहीं से बीमारी शुरू होती है। वो एक दूसरे को पूछते हैं तुमने कोचिंग सेंटर डाला कि नहीं डाला। 7-7 लाख रुपया लगता है आपको कोचिंग के लिए, सिविल सर्विस। और आप कभी सर्वे करके देखिएगा पिछले 25 साल में कितने बच्चे, जितने टॉपर्स हैं सारे केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। क्योंकि पहले दिक्कत क्या थी कि एक्सेस टू ट्रेनिंग नहीं था फॉर कोचिंग और व्हाटएवर। अब अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला बिहार में, जहाँ के सिविल सर्विस का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे बच्चे हैं, और ये कोई कहानी फिक्शन भी नहीं है, जो शाम रात को खाना खाने के बाद रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर वाईफाई चल रहा है फ्री, और वहाँ बिजली भी होती है। तो ऐसे ऐसे गरीब घरों से आते हैं कि जहाँ आपके पास बिजली की कमी और इंटरनेट है, और निकाल लेते। चलिए बात करेंगे। I'm CA Desharwani. As you are a science and Please speak loudly. hello. Sir, I'm CA Desharwani. As you are a science and technology minister, तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक एडिक्शन सर एक बढ़ता जा रहा है. I don't know, and this is the futuristic budget, and my question is, ये सोशल मीडिया पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है एंड स्क्रीन टाइम में जो बढ़ रहा है बेसिकली जो युवा पीढ़ी में, तो सर उसके रिलेटेड वेदर गवर्नमेंट इज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की रहेगी. दिस इज पर्सनल क्वेश्चन ऑल्सो एंड फॉर पब्लिक ऑल्सो. सो एनी बजट
related anything is there or going to be taken care in this budget? नहीं ठीक है, you are right. This is an issue being faced by all. तो इसमें सरकार तो रेगुलेशन करेगी, थोड़ा बहुत तो कितना कर सकती है, तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस अमंग ourselves भी चाहिए. फैमिली लेवल पे तो होनी चाहिए, इवन एट द इंडिविजुअल लेवल. सी व्हेन आई एम सेइंग एवरीथिंग इज देयर. होता क्या है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. खादी का 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ. वहाँ का एक चेयरमैन एक लड़का बन गया, वो खादी कॉर्पोरेशन नहीं गुजरात में. वो हमारा कार्यकर्ता होता, वो मुझे मिला, मैंने कहा भैया क्या क्या करते हो? बोले साहब ये बहुत कमाल का काम, आजकल तो एक्सपोर्ट हो गया. तो मैं कहा इसमें कोई बच्चों को फायदा हो सकता है? तो ही सेज कि होता है 40% सब्सिडी सरकार दे रही है, और जो इंटरेस्ट लेंगे आप बाकी लोगों से, उसको इंटरेस्ट पर भी हम सपोर्ट देते हैं, और हम इसके शुगर लगा क्या. तो मैंने कहा कहाँ लगाया? बोला वाराणसी लगाया, बीएम साहब के इलाके. मैंने कहा अब आगे कहाँ में जाना है? तो कह रहे नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ कौन सा? कहता है कि दिल्ली चंडीगढ़. मैंने कहा थोड़ी चीटिंग का, तो मैं उसको अपने क्षेत्र में ले लिया. उसने कहा 50 करोड़ की सब्सिडी बांटी गई. जब बांटने का सिलसिला खत्म हुआ तो बाद में पता चला कि एक भी हमारा अपना बच्चा नहीं आया. दूसरे तीसरे जो वर मोर अवेक्टेड, मे बी आंध्रा, मे बी कर्नाटका, मे बी कश्मीर, वो आए हमारे इस बैठे के. फिर मैंने डाटा आपको विद्यार्थी परिषद क्या करते हो तुम? तुम्हारे लिए यहाँ पे कैंप लगाया, 50 करोड़ रुपया बांट गया, वो यहाँ का एक भी बच्चा नहीं बाहर गए. सर हमें पता ही नहीं चला. तो मैंने उनको पूछा यार क्या करना, कहता है क्या कर सकते हैं, ये तो सारा ऑनलाइन था इसके ऊपर. तो मैं उसको डांटा, मैं कहता हूँ करते क्या हो? आई एम एडिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, यू आर राइटली पॉइंटिंग. आई थिंक द यूथ नीड टू बी एजुकेटेड. मैं कहता तो ये तुम्हारे पास है, इसको देखना है, कहाँ से पता चलेगा? कोई घर में वो देने तो आएगा नहीं चिट्ठी. मैंने उसको डाटा एक उनमें से वो तो बदलता था अपनी फोटो. वो क्या लिखते हैं, माय न्यू प्रोफाइल. मतलब सारा दिन ये तू करता रहता है, और जिनको दिखाता है पता नहीं वो भी देखते नहीं देखते. तो अपना काम कर. सो आई थिंक बिकॉज दिस इज अ न्यू मीडियम, वी आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. आई एग्री विद यू. सो वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड the parents also need to understand, and most of all the youngster himself. This is a great blessing if you youth in the library, and all your avenues, opportunities are given in this. Please, any last question? Last question. Yes. Very good afternoon, sir. My name is Arch Palani. I'm the student of GLS University. So, you recently talked about the privatization of the atomic whole sector, the nuclear energy sector. Nirmala Sitharaman ji also stated in their speech of the budget that there would be some amendments made to the Atomic Energy Act and Nuclear Damage Act. So, if you can just, bring a bit light on it, that what can be the amendments on that? No, that I can't be telling you straight away because we are still working on it. But certainly we'll make it very facilitated. Because it was in 2010, it was the most controversial thing that happened with the Nuclear Damage Act 2010. That was different. That is the civil nuclear. Civil liability of nuclear. That is not actually related to that. There in that act, the apprehension was that the base mostly came from the foreign investors like America. They had the apprehension that in case of a mishap in a nuclear plant, the supplier will be made the answerable and he would have to pay for all the damages. So that was then clarified. It is not so. The first responsibility will be operator. Then if it is able to prove that it was not his fault, supplier is supplier. And even in that case, the entire onus will not be on supplier. We have created an insurance pool of about 1,500 crore rupees possible from different sources. And if that is also exceeded, then about I think 3,000 crore or so will be paid by the government. And if the amount goes beyond that also, the damages, then we are also part of the UN Convention Treaty. So they will also partner. So no liability on the supplier
the operator to that extent that he gets crippled. That has been assured. So that is now settled. Otherwise, France and America would not be entering into a emergency period even during the current tour of Prime Minister. Yesterday there was an agreement with France for nuclear projects. Today this is agreement with America. So that has been, now they are satisfied. Thank you very much, Honorable Sir. वो एक को ऊपर से बोल रहा था, कह रहे थे बालकनी वालों को पूछा नहीं करें. They are being kicked out. जब तक नहीं जाना वहाँ से. ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ना, प्राइवेट सेक्टर, ये इसी दिशा में हो रहा है. क्योंकि जब आप पर कैपिटा देखेंगे, जब आप जीडीपी देखेंगे किसी देश का, तो केवल सरकार का नहीं होता, उसमें सारी इकॉनमी आ जाती है. लेकिन चूंकि अभी तक हमने प्राइवेट सेक्टर को अलग रखा था, सो हम खुद ही अपने आप को सस्टेन करके बैठे. जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो एक सप्लीमेंटेशन हो जाएगा. अब ये जो मैंने कहा स्पेस इकॉनमी इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए बढ़ गई ना, तो प्राइवेट सेक्टर का भी यूज होता है. जब वो होगा तो नेचुरली ये पैरामीटर भी ऊपर आ जाएंगे. Thank you, sir. As we conclude the seminar, I request CA Dr. Marzoon Joki, GLS, ready to deliver the vote of thanks on behalf of GCCI. Good evening. Respected Honorable Minister Dr. Jitendra Singh sir, all the dignitaries of GCCI, ICAI, GITO, my colleagues from GLS University, all the learned august guests, the youth energy from the university. सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि हम इन्फॉर्म्ड है और इन्फॉर्म को क्या इन्फॉर्म करेंगे, बट लेट मी अश्योर यू वी वेर अ बिट इन्फॉर्म्ड, बट यू हैव मेड अस अवेयर, you have made us well informed, you have made us literate and knowledgeable from your session, so thank you so much. It is a brilliant coincidence that in the current week only our Honorable Finance Minister had tabled the income tax bill in the Parliament, and today sir is with us for decoding the budget. So I think this shows the commitment and the vision of our government under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi sir. Sir, on all our behalf, please convey a big thank you to sir for investing in people, investing in economy and investing in innovation. Thank you so much sir for spending your valuable time. Thanks to GCCI, ICAI, GITO as well as GLS University for this brilliant function. Thank you everyone, and thank you Jain sir for giving me the opportunity for the vote of thanks. Thank you everyone. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। बजट की
આ પ્રેસ વાર્તામાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી આપની વચ્ચે પ્રેસ વાર્તામાં આવ્યા છે. માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું કે આપને સંબોધન કરશે. धन्यवाद. सबसे पहले तो सभी मीडिया के मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है. जैसा कि अभी बताया गया कि हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और आज गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया. बुद्धिजीवियों के साथ भी विचारों का आदान प्रदान हुआ. कुछ हमसे उनको कुछ समझाने का अवसर रहा, कुछ उनसे उनके सुझाव भी प्राप्त करने का अवसर रहा, और एक बड़े ही सेहतमंद वातावरण में एक व्यापक चर्चा करने का मौका रहा. और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीडिया के मित्रों के साथ अहमदाबाद की मीडिया सदा बहुत ही सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव रहा है, और इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि हम जो आज हमारी चर्चाएं रही हैं बजट को लेकर के अहमदाबाद नगर में, उसका भी कुछ उल्लेख करें, और जो बजट को लेकर के मोदी जी की विजन जो उसमें दूरदर्शी की झलक है उसके ऊपर भी चर्चा करें. तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि ये बजट 2025 है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और उनकी फ्यूचरिस्टिक विजन की एक झलक है. In other words, budget 2025 is a reflection of Prime Minister Modi's futuristic vision. बड़े दूरगामी इसके अंजाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं, दूरगामी इसके हमें लाभ प्राप्त होने वाले हैं. और जो मोदी जी अक्सर बात करते हैं सन 2047 के विकसित भारत की शताब्दी, भारत जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और हम हमारे देशवासी भारत का शताब्दी उत्सव मनाएंगे, तो उस समय भारत की तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, व्हाट विल बी द फेस ऑफ इंडिया एट 2047, वो निर्धारित करने का या उसकी योजना बनाने का भी समय अभी से शुरू हो चुका है. और उसको मद्देनजर रख करके तो ये बजट फ्यूचरिस्टिक भी है, ये रेवोल्यूशनरी भी है, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय भी हैं, और ये साहसी भी है, बोल्ड भी है, और इसमें कन्विक्शन भी है, निष्ठा भी है. सो इट्स अ बजट ऑफ करेज, बजट ऑफ कन्विक्शन, बजट ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, एंड बजट विद स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी डिसीजंस विद अ फ्यूचरिस्टिक विजन. उदाहरण के तौर पर एक घोषणा जिसकी आप चर्चा हुई है, जो मध्य वर्ग को लेकर के, कभी कभी कहा जा रहा था कि मध्य वर्ग की उपेक्षा होती है, तो उनको लेकर के जो टैक्स रिलीफ मिला है, मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं. आप मित्रों ने उसको अपनी रिपोर्ट्स में भी लाया है, अपनी टिप्पणियों में भी, कि पहली बार 5 गुना बढ़ गई है रिलीफ. सन 2014 में जब ये सरकार आई थी और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की, तो इनकम टैक्स रिलीफ आम नागरिक के लिए हुआ 2.5 लाख, आज बढ़कर 25 लाख हो गई. और मैंने कुछ एक आंकड़े निकाले हैं, बहुत दिलचस्प रहेंगे आपके लिए, कि सन 2014 में यदि कोई 8 लाख रुपया साल में कमाता तो उसको टैक्स देना पड़ता था 90,000 रुपये, यानी उस जमाने में 90,000. तब का 90,000 आज के 90,000 से कहीं ज़्यादा वैल्यू पर, लेकिन आज वो 0. इसी प्रकार अगर 2014 में कोई 12 लाख रुपया साल का कमाता तो उसके ऊपर टैक्स लगता 1,90,000, लेकिन आज वो 0. और चूंकि 12 लाख के बाद जो टैक्स लगना है उसकी भी दरों में कटौती की गई है. उदाहरण के तौर पर यदि आप 2014 में ये सरकार आने से पहले 24 लाख रुपया कमाते तो आपको टैक्स लगता 5.5 लाख रुपया, आज उस पर अगर टैक्स लगेगा तो मात्र 3 लाख रुपया. यानी टैक्स की रिलीफ 12 लाख रुपए तक देने से लगभग देश की भारी मात्रा में जो जनसंख्या है वो टैक्स फ्री हो, उनको टैक्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है. और जो 12 लाख से अधिक है उनके ऊपर भी बोझ में कमी आई. यानी जहाँ 5.5 लाख अगर किसी को देना पड़ता था 12 लाख के ऊपर, सन 2014 से पहले आज उसको 24 लाख पर 3 लाख देना.
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे निर्णय, चूँकि टैक्स का निर्णय बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इस कारण बहुत से और निर्णय ऐसे रह गए जिनकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये बजट प्रस्तुत हुआ था, सदन से बाहर निकले तो मीडिया के कुछ मित्रों ने पूछा, तो मैंने कहा कि इस टैक्स रिलीफ के कारण बहुत सारे ऐसे निर्णयों की जिक्र नहीं हो रहा। जैसे जैसे विश्लेषण होगा तो उसका व्यापक चर्चा न केवल देश में होगी बल्कि विदेश में होगी। विदेश जाओ उठेगा कि ये कैसे निर्णय हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जो न्यूक्लियर मिशन लॉन्च करने का निर्णय है, ये मोदी जी के ही द्वारा किया जा सकता था। 60-70 बरस तक हमारा न्यूक्लियर सेक्टर गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा, साधनों के अभाव में काम करता रहा। उसको वहाँ से मुक्त करके पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कि सन 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की स्थिति में रहेगा। और ये निर्णय केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था। ये मैं इस आधार पर भी कह रहा हूँ कि इसी सरकार ने मोदी जी की अनुमति से आज से 3-4 वर्ष पहले इसी प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र को भी खोल दिया था, जिसे मीडिया ने लिखा था कि मोदी हैज अनलॉक्ड द स्पेस सेक्टर। यानी वो श्रीहरिकोटा, जहाँ फाटक के अंदर कोई झांक जाता तो उसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट हो जाती, आज कोई भी वहाँ पर लॉन्चिंग होती है तो 5-10 हज़ार लोग दर्शक देखने आते हैं और 1,500-2 हज़ार की संख्या मीडिया वाले होते हैं। और हमारी इकॉनमी इस कदर तेजी से बढ़ने लगी, उस समय मात्र ना के बराबर थी। और स्टार्टअप हमारे सिंगल डिजिट थे। आज 3-4 वर्षों में वहाँ 300 स्टार्टअप हो गए, इकॉनमी बढ़ करके $8 बिलियन हो गई। और जो प्रोजेक्शन बता रही है कि आने वाले समय में 5 गुना और 3-4-8 वर्षों में बढ़ करके $40-45 बिलियन तक हो जाएगी। और यही दृश्य अब आपको न्यूक्लियर एनर्जी में देखने लगा। और इसमें एक तरफ तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि हम सन 2047 तक उस शिखर पर पहुँचेंगे, तो हमें ये भी सोचना होगा, ये भी आकलन करना होगा कि यदि हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए तो हमें भला चौथे दर्जे और तीसरे दर्जे और अव्वल दर्जे में कैसे पहुँचेंगे। वो तभी पहुँचेंगे कि उन सेक्टर्स को तलाशा जाए जो चाहे एक्सप्लोर ना किए गए या अंडर एक्सप्लोर रहे। उनको लेकर के हमारा ये न्यूक्लियर सेक्टर, हमारा स्पेस सेक्टर, हमारे समुद्री रिसोर्सेज 750 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है। पहली बार मोदी जी ने डीप सी मिशन शुरू किया, उसके लिए भी अतिरिक्त राशि इसी बजट में निर्धारित की गई। वहाँ मेटल्स भी है, मिनरल्स भी है, फिशरी भी है, बायोडाइवर्सिटी, और हमारे हिमालयन रिसोर्सेज जहाँ रोवा मिशन शुरू की। ये सब जब मिल जाएंगे तो सन 2043 से पहले हम उस शिखर पर पहुँचने में कामयाब रहेंगे। उसी प्रकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, आने वाले ज़माने में छोटी छोटी जो बैटरी रिएक्टर्स की लेकर के आप चलेंगे। और वो जब ज़माना आएगा, वो जब कल्चर आएगा, तो भला आपकी क्या स्थिति हुई। वो ज़माना नहीं रहा कि विदेश में कोई टेक्नोलॉजी आती तो हिंदुस्तान में 15 साल के बाद आती। टेलीविजन 1950 के दशक में अमेरिका में आए, या पहली बार आपने चित्रहार देखा 1970 में। अब वो ज़माना नहीं। अब आप कदम से कदम मिला करके बराबर के स्तर पर चल रहे हैं और कुछ एक जगह दूसरों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। जैसे आपने कहा न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047। और इसीलिए जीन के स्थिति में जीन का बैंक बनाया जाएगा प्लांट्स के लिए। अब वो ज़माना होगा कि लैब क्रिएटेड फूड्स। और आने वाले ज़माने में हमारी इकॉनमी बायो इकॉनमी ड्रिवन होगी, जैसे कि पिछली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन थी। उन सब बातों को मद्देनजर रख करके इस बजट की रचना की गई है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी घोषणा वोट ऑफ अकाउंट में हुई थी, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मोदी 3.0 में उसके लिए 50,000 करोड़ निर्धारित किया गया। और आज ही के दिन, जबकि मोदी जी वाशिंगटन में है, उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है, उसकी जॉइंट स्टेटमेंट में उल्लेख किया गया है कि जॉइंटली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया और नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA काम करेंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी मिलेगी। और अमेरिका ने और दूसरे देशों ने भी भारत की क्षमता को कबूल करना शुरू किया। उनको समझ आ गया कि हमें क्षमता भी है। और ये सारा बदलाव मुख्य तौर पर इसलिए आएगा कि हमारे पास एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो अनुकूलता प्रदान करने के स्थिति में है। We had all the potentials, all the resources,
and also all the commitment on the part of our experts. But what was lacking perhaps was an enabling milieu which is to be provided by the critical dispensation and has been provided now under Prime Minister Modi. और इस बात को अब दुनिया समझने लगी, दुनिया स्वीकार करने लगी। आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार है। और इस बजट से ये भी एक पैगाम जाता है कि अब वो भारत कल का भारत नहीं रहा, इससे भारत की साख बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत दूसरे देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है और ये एक निरंतरता का भी संकेत है। इसी देश ने सबसे पहला वैक्सीन इजाद किया, जिस देश में कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के गंभीरता से नहीं सोचा जा सकता था, आज वो देश प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर माना जाता है, लीडर ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। और उसी के तहत आपने देखा कि औषधियों की कमी, 36 औषधियाँ ऐसी हैं जो कैंसर इत्यादि रोगों में इस्तेमाल होती हैं, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। बहुत सी औषधियों की कीमत कम कर दी गई है। 200 से अधिक कैंसर सेंटर देश में स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये इकोसिस्टम एक जुड़ करके बनेगा जिसमें शामिल रहेगा आयुष्मान, और आयुष्मान को लेकर के जो अभी हाल ही में मोदी जी का निर्णय हुआ कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए यूनिवर्सल कवर। तो आप देख सकते हैं एक स्वस्थ भारत हो सन 2047 के लिए और साथ ही साथ एक सक्षम भारत हो और हर वर्ग का एक समान विकास हो, क्योंकि यदि हमें उस लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का एक समान विकास करने की योजना बनानी पड़ेगी। सर राहुल गांधी जिस तरह से स्टेटमेंट कर रहे थे अभी आज का दिन हम बजट केंद्रीय बजट को लेकर जने प्रश्न हो वो भी इसके लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय बजट के लिए कोई प्रश्न हो तो वो अब अभी स्थिति रही। थैंक यू। लाइट से कोई बजट रिलेटेड क्वेश्चन बजट थैंक यू। कसं